start with prime factorization. Yeah. So good afternoon, everyone. And today we'll start with prime factorization. Thank you for attending the class. So, and I would like to apologize for the construction noise that you can hear, I think. So yeah, we'll start with prime factorization today. So prime factorization, as you can see, it is two terms, right? Prime and then it's factorization. So we'll first understand what the term factorization means. Okay. So okay, so before starting with this, understanding the term factorization, we'll see the whole this prime factorization. It is also known as integer factorization. So I hope a lot of us knows what integer is. So integer is a number only, which is can be integer factorization. Okay, I'm just writing FSC. Okay, so now, integer can be negative, can be positive as well, including zero. So it can be the number line that we saw in previously in our classes. So the entire number line which we saw starting from zero, then at the right hand side we have the positive numbers. So all of these are comes under integer. Okay. So the negative values are also there and the positive values are there. Nevertheless, so now prime factorization, the whole term means um, prime factorization is basically of a number that is breaking down itself into set of prime numbers. So, and we have also kind of understood what prime numbers is. Does anyone remember what a prime number is? If you don't, then it's okay. But does anyone remember what a prime number is? I'll repeat it if you do not remember. You can write yes or no, or anyone, if you want to mention what a prime number is in the chat box, that's also fine. Okay, Astik said yes. Okay, great. So, okay, I guess, and if anyone have any doubt regarding prime number, so prime number is nothing. Basically, it's a number that has only two factors, okay? Which is the number itself and one. Multiple of 2. Okay. Yeah. 2 is a prime. Right. Okay. Yes. Sejal, you can see Sejal has already written in the chat box that a number which has factor 1 and the number itself. Right. It has only two factors, which is the number and the factor itself. Like some James Bond mentioned, 2 is a number. So 2 has 1 and 2 itself. So 2 factor is 2 itself and 1. Then we have 3, then we have 5 also, we have 7, then we have 11, so it goes on. Okay, so we have also seen the sieve of Eratosthenes. There was this Greek mathematician who have kind of determined how to quickly determine prime factors and like prime numbers and composite number in an entire kind of number line, like 1 2 3 4 till 100, how we will determine it. Okay, so we have all seen all of those basic fundamental terms and all, right? Okay, so now we will see like the term prime factorization. It means breaking down a number into a set of its prime numbers which can be multiplied together, and जो result आएगा that will be again the original number. So, of course, so as you can see this 24. Okay, so we will break it down into its prime numbers. So first, as we know, for your convenience, I have kind of done this breaking like a step-by-step breakdown. Okay, so 2 into 12 is what we know as 24, like 2 का multiple में. ठीक है, फिर उसके बाद we can see like 2, अगर 12 को हम लोग we are trying to breaking it down, we will see 2 into 6. Again, 6 को हम लोग we can see it as this, right? So basically, it's a set of prime numbers. 2 हो गया एक prime number and 3 is also, right? So set of prime numbers में हम लोग उसको break down कर दे रहे हैं so that we can get the entire prime factorization of that particular number. So and ये सबको अगर हम लोग again multiply कर देंगे, okay? ये सबको अगर हम लोग फिर से multiply कर देंगे, we'll get the original number. So that's, of course, that's the basic thing. And अगर हम लोगों को like divide, like ये जो
डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग पूरा ये नंबर को, डिसइंटीग्रेट या नंबर को जो हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, ये नंबर को फैक्टराइज करने के बाद जो हम लोगों को जो सीरीज ऑफ नंबर्स या फिर जो सेट ऑफ नंबर्स मिल रहा है, ठीक है, एंड इफ वी आर अनएबल टू डू द बैक कैलकुलेशन और वही ओरिजिनल नंबर तक पहुंचने में हम लोग असफल रहे, लाइक वी आर अनएबल टू डू दैट, इन दैट केस वी विल अंडरस्टैंड कि हम लोगों को जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है, जो फैक्टर्स मिला है, ठीक है, वो गलत है, ठीक है. बट राइट नाउ यू कैन सी लाइक 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are again it's 24, ठीक है. अभी हम लोगों ने और 2-3 टर्म के बारे में ये बातों बातों में ही सुन लिया, जैसे कि डिसइंटीग्रेट करना या डिकम्पोज करना. ये आप ओके, डज एनीवन वांट टू से एनीथिंग? चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा है? ओके. A natural number greater than, okay, Mayank has written a natural number greater than 1 has 2 factors, right? Okay, okay. So, yes, you're right, Mayank. And also Astik has written no, okay, number which is divisible by the number, and okay, yes, you're also right. Great. Okay. But basically इन लोगों ने प्राइम नंबर्स के बारे में बताया है, ठीक है. आप लोग अगर चैट बॉक्स भी फॉलो कर रहे हैं, यू कैन सी. So now बातों बातों में हम लोगों ने कुछ like kind of words, कुछ terminologies हम लोगों ने सुना, which is first is disintegrate करना या decompose करना, right? और ये decompose करना या disintegrate करना हम लोगों ने अपने day to day life में या biology में भी सुना है, जब अदिति मैम क्लास लेती है. We have heard this term. So as we know, like disintegrate और decompose mathematical term में क्या हो सकता है, which is to express a number और एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन पकड़ लीजिए या फिर कोई भी नंबर पकड़ लीजिए, उसको हम लोग एक कॉम्बिनेशन में लाते हैं उनका सिंपलर एक्सप्रेशन में. तो ये अगर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स, मतलब 24 को अगर हम लोग एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है ये, पर फिर भी लाइक एक ह्यूज नंबर पकड़ रहे हैं, तो दिस 2 into 2 into 2 into 3 इज अ मच सिंपलर फॉर्म, मतलब बहुत ही सिंपलर डिविजन है, लाइक बहुत ही सिंपलर भाग है इनका, ठीक है. तो ये हो गया. और ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि डिकम्पोज इज बेसिकली एक प्रॉब्लम को हम लोग एक डिसइंटीग्रेट करना या डिकम्पोज करना इज बेसिकली एक प्रॉब्लम को हम लोग सब प्रॉब्लम्स में काइंड ऑफ उसको मतलब अलग अलग कर रहे हैं, छोटा छोटा प्रॉब्लम्स में उसको अलग करते रहे. जैसे यहाँ पे हम लोग अलग कर, पहले हम लोगों ने ये स्टेप में क्या किया, 2 को 12 से, मतलब 2 को 12 से अलग कर दिया, लाइक मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन में डाल दिया. फिर उसके बाद 12 को भी हम लोग डिसइंटीग्रेट करे जब, तो उसको 6 और 2 में एक फंक्शन में डाल दिया, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6 and 2. तो ऐसे कर करके हम लोगों को एक सिंपलर फॉर्म मिल गया 24 का, ठीक है. एंड अभी हम लोगों ने लाइक ये जो बायोलॉजी में हम लोगों ने देखा है कि काफी टाइम क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं, लाइक इवन वी एज ऑर्गेनिक लाइक बॉडी, लाइक हमारे जो कॉम्पोजिशन है उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि व्हेन वी डाई, तो हम लोग मर जाने के बाद लाइक काफी सारे रिचुअल्स में, जैसे हिंदू रिचुअल्स में वी बर्न द बॉडी, राइट, बट देन काफी सारे अलग अलग रिलीजियस रिचुअल्स में हम लोगों ने देखा है कि उन लोगों को बरी किया जाता है. तो हाउ डज, एंड द एंटायर बॉडी डजंट, अगर हम लोगों ने कोई केमिकली उसको प्रिजर्व नहीं किया है बॉडी को, एक पूरा वो पूरा फिगर को, तो वो बॉडी डिकम्पोज होगा ही, ओके. तो वो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम लोग तब बन जाएंगे, मतलब मृत्यु के बाद, राइट. तो उसको हम लोग जब सिंपलर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम लोग फिर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, हम लोग डिकम्पोज हो जाते हैं बेसिकली. तो वो हो गया बायोलॉजी के टर्म में. जैसे कि हम लोग हम बोल सकते हैं कि CO2, वाटर, फिर शुगर, सिंपलर शुगर जो होता है, फिर मिनरल सॉल्ट्स, इन सब चीजों में हम लोग अपने मतलब वो हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है. हम लोग मतलब स्मॉलर, मतलब एक बड़ा सा हम लोग अगर प्रॉब्लम अपने आप को कंसिडर करें, द एंटायर फिगर एज अ प्रॉब्लम, तो हम लोग जब मर जाते हैं, व्हेन वी फॉर्म एज अ लाइक डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाते हैं, तो उसको हम लोग फिर डिसइंटीग्रेट करके फिर स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में हम लोग बन जाते हैं, लाइक स्मॉलर सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर सब ऑर्गेनिक्स. तो ये बायोलॉजी के बहुत डिटेल में चले गए. फिर हाँ, तो ये प्रोसेस करने के लिए लाइक ये जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हम लोग जो सिंपलर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, तो उसके लिए एक
लाइक एक लिविंग लाइक एक एक्शन ऑफ बैक्टीरिया या फिर फंगाई का एक एक्शन लगता है, या फिर हम लोग केमिस्ट्री में भी देखा है हम लोगों ने, कोई भी लाइक कोई भी काइंड ऑफ रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, ओके, इट फास्टन्स द प्रोसेस। तो सिमिलर वे में बैक्टीरिया या फंगी ये पूरा प्रोसेस को फास्टन करते हैं। तो ऐसे ही मैथमेटिकली वी यूज सम फंक्शंस, कुछ मेथड्स हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एक नंबर है, उसको हम लोग इजी वे में उसको पूरा मेल्ट डाउन कर दे या फिर ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। तो वही हो गया आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है। एंड अभी आप यहाँ पे और भी मेथड देख पा रहे हो, लाइक आई गेस अभी तक जो भी मैंने बताया इट्स ऑलमोस्ट इट्स क्लियर, बिकॉज ये सारे बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो कि सबको पता ही होगा, ठीक है। ओके, नो क्वेश्चन, सो आई कंटिन्यू। सो 24 को और भी तरीकों से हम लोग वी कैन काइंड ऑफ डिवाइड इट, ओके, वी कैन ब्रेक इट डाउन। 24 को जैसे कि 4 और 6 में कर सकते हैं, 3 और 8 में कर सकते हैं। तो वट एवर वी डू, कैसे भी हम लोग उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसका जो एंड रिजल्ट आता है, उसका जो एंड का जो प्राइम फैक्टर का जो सेट आता है, वो आपको सिमिलर ही मिलेगा। जैसे कि 3 लाइक 2 क्यूब इंटू 3, ठीक है, सिमिलर ही मिलेगा। और इसको फिर अब अगर बैक कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल नंबर ही आ जाता है। सिमिलर वे में यहाँ पे 36 आप देख पा रहे हो, तो 36 का आपको आप ये भी बोल सकते हो कि 2 इंटू 18 है, आप ये भी बोल सकते हो लाइक 12 इंटू 3 है, ठीक है। फिर 4 इंटू 9 इज ऑल्सो 36, देन 6 इंटू 6 इज ऑल्सो 36। तो इसको अगर हम लोग डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं तो द सिमिलर जो कि हम लोगों को जो एंड के जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स मिलेंगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो हम लोगों को मिलेंगे, ठीक है, वो हम लोगों को सेम मिलेंगे। तो लाइक दिस वी कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 36 का जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन एट द एंड आएगा, कैसे भी हम लोग निकाले तो उसको वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। सो इट्स बेसिकली 2 दिस इंटू 3 स्क्वायर और ये सारे लाइक टू दी पावर के जो भी फंडामेंटल्स है वो भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। सो इट्स द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन, यही आपका एकमात्र प्राइम फैक्टराइजेशन 36 का आएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट उसमें जाते हैं। तो अभी प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन आई गेस ऑलमोस्ट लाइक मोस्ट ऑफ यू लाइक सबको क्लियर है आई गेस। काइंडली अगर आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टर्म। अभी कोई हाई लाइक अगर किसी को हाई फंडास पता है, फंडामेंटल्स पता है, तो वो सब नहीं बता रही हूँ मैं। अभी मैं आपको बस टर्म्स के बारे में बता रही हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन ये वर्ड के मतलब आपको क्लियर है, ठीक है। ओके ग्रेट, ओके ग्रेट, ओके। सो नाउ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग देख सकते हैं, लाइक दिस 980 इज वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो 980 को हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। तो 980 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली एक डाउनवर्ड डिविजन आप बोल सकते हो, या फिर एक डाउनवर्ड काइंड ऑफ कैलकुलेटिव काइंड ऑफ एक फंक्शनैलिटी है जो हम लोग यूज करते हैं। कोई कोई ऐसे भी इसको काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके ग्रेट, ओके या। तो अभी इसको हम लोग अगर करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग पहले सबसे जो लाइक विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विल स्टार्ट विद दैट इफ इट्स पॉसिबल। कोई कोई न्यूमेरिकल में आपको दिखेगा कि 2 के साथ नहीं, इसको ये पॉसिबल ही नहीं है। पर यहाँ पे क्योंकि 0 है और 2 के डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी नंबर के एंड में अगर 0 है, 2 है, 4 है या 8 है, 6 ऑल्सो, ओके सॉरी यहाँ पे 6 होगा। तो 2 के मल्टीपल्स में कोई भी नंबर अगर उसके एंड में है, कोई भी नंबर के एंड में है, तो वो पूरा नंबर 2 के साथ डिविजिबल होता है, राइट। 2 के डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने ये देखा था। तो नाउ ये जाएगा आपका 490, राइट। अभी फिर आप 2 के साथ अगेन कर सकते हो, राइट।
you can divide it again, then ये होगा 245. ग्रेट. देन अभी ये आपका 5 आ गया एंड में, तो ये अगर 5 आ गया एंड में तो हम लोग डायरेक्ट 5 के साथ भी हम लोग इसको करके देख सकते हैं, या फिर ठीक है, नाउ वी कैन डू इट एज 44 9 या अभी 49 हम लोगों को पता है कि 7 into 7 बेसिक मल्टीप्लीकेशन के वजह से हम लोगों को पता है. सो नाउ दिस इज इट. ओके, तो ये पूरा टर्म का जो भी लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन, आई एम राइटिंग इट एज लाइक इसका एवरी मतलब पीएफ लिख रही हूँ, ठीक है, पर ये पीएफ इज नॉट एन एब्रिविएशन ऑफ इट. आप लिख सकते हो पर आपके मतलब इजी होने के लिए, पर इट्स नॉट एन एब्रिविएशन. ओके, अब 980 का क्या क्या हो गया आपका, 2 into 2 into 5 into 7 into 7. तो ये सारा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आ गया. अभी 1 को हम लोग नहीं कंसिडर करते, ठीक है. 1 इट्स प्रेजेंट, वी कैन कॉल इट लाइक ओमनी प्रेजेंट, है ही वो, ठीक है. 1 तो है ही, पर इसको मेंशन नहीं करते प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर का जो फंक्शनैलिटी है हम लोगों ने पढ़ा था, कॉम्पोजिट नंबर का फंक्शनैलिटीज एंड ऑल, राइट. तो प्राइम नंबर के फंक्शनैलिटी 1 सेटिस्फाई नहीं करता है, तो अभी लिखते नहीं है, पर ये है, ठीक है. अभी देख लेते हैं अगर हम लोग सही किया है, ठीक है. हाँ, तो 980 का जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आता है विच इज 2 into 2 into 5 into 7 into 7, दिस इज व्हाट वी आल्सो गॉट, ठीक है. यहाँ पर आई गेस इट्स प्रिटी इजी, ठीक है. तो अभी और एक लाइक काइंड ऑफ एक वे आउट है, फैक्टर ट्री हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है. कोई भी नंबर को हम लोग फैक्टर ट्री करके भी उसको लाइक फैक्टराइजेशन या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं. फैक्टर ट्री क्या होता है आपका, एक फैक्टर, और ट्री क्या होता है, एक बेसिकली एक ट्री इज बेसिकली हिंदी में क्या बोल, इट्स कॉल्ड इन बंगाली वी कॉल इट एज गाछ. ओके, तो मैं हिंदी का टर्मिनोलॉजी आई एम फॉरगेटिंग इट, सो व्हाटएवर. तो अभी एक ट्री पकड़ लीजिए, ठीक है, और फैक्टर का ट्री क्या होगा, उसका ट्री में क्या क्या होता है, लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, राइट. सो वी हैव लीव्स एंड ब्रांचेस एंड ओके, सो ऑल ऑफ दीज वी हैव. सो नाउ एक अगर नंबर का हम लोग फैक्टर के ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो राइट नाउ वी हैव अ नंबर 90. यहाँ के ही एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है. अभी इतना तक आई गेस सबको क्लियर है, तो नाउ आई जस्ट ये हम लोग मैं ओमिट कर दे रही हूँ, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ओमिट कर देती हूँ. इतना तक आई गेस सबको क्लियर है ना. आई गेस एवरीवन इज क्लियर विद दिस. ठीक है, मैं नीचे करती हूँ इसको. Okay, yes, okay, James Bond has written yes, great. So now अगर 90 एक नंबर है, उसको अगर फैक्टर ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फैक्टर ट्री ऐसे बनते हैं, ठीक है. इसका ब्रांच निकल गया, ठीक है, 90 को अगर बेस पकड़ रहे हैं तो उसका ब्रांच निकल गया 9, फिर 10, फिर 9 का फिर से अभी ब्रांचिंग करेंगे, ठीक है, वो निकल गया उसका ब्रांच, अभी 9 बेस हो गया, ठीक है. उसको हम लोग का क्या कर सकते हैं, 9 को 3 3, ठीक है. अभी 10 का हम लोग करते हैं ब्रांचिंग, फिर ये आ गया आपका 2 and 5, तो ये 90 का इतना इतना निकल गया, ठीक है. अभी ऐसे ही हम लोगों ने पहले भी किया था, इफ यू रिमेम्बर दिस वन, 36 का इतने सारे ब्रांच निकाले थे, फिर उसके बाद 12 का ब्रांचिंग किया था हम लोगों ने इसको, फिर यहाँ पे 4 का ब्रांचिंग किया था हम लोगों ने, सिमिलर वे में 24 का भी सेम किया था, और यहाँ पे 18 का भी आप देख सकते हो, ब्रांचिंग करके हम लोगों ने 2 और 9 बनाए थे, फिर उसके बाद 9 का हम लोगों ने 3 और 3, राइट, दिस वन, देन ऐसे फिर ये 4 का हम लोगों ने ये वाला ब्रांचिंग किया था, ओके. With 6 का we have done this branching, and then this 6 we have continued in the next step as this branching. Then इसको rearrange करके हम लोगों ने 2 को एक साथ कर दिया था और 3 and 3 को एक साथ कर दिया था, okay. So this is how branching works. Yeah, yes, okay, great. So now तो ये आप देख सकते हो कि it's kind of an ulta tree. It's a ulta tree, you can call it as. This is the base roots, okay. This is the base
एंड दिस इज द लीव्स एंड ब्रांचिंग कर करके फिर वो उल्टा हो गया, ठीक है। ये दिस इज एन इन्वर्टेड ट्री काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो यहाँ पे वो फैक्टर ट्री बन गया, ठीक है। फैक्टर्स के ट्री बना लिया हम लोगों ने। तो यू कैन सी 90 को 10 और 9 में, फिर 10 को 2 और 5 में, और 9 को यहाँ पे 3 और 3 में, ठीक है। दिस इज हाउ इट्स वेरी इजी। बहुत क्लास 6 के फंडामेंटल्स है, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट विल बी as basic as it can be. Okay, so now we will see some numericals, because again, prime factorization and all of these are something that we should kind of quickly do. We should kind of quickly solve some numericals ताकि पूरा basic ही clear हो जाए. तो kindly like if it's clear to some of you also, like हम लोग अभी 29 of us are here. So if some of you can try it out, answers like यहाँ पे बहुत ही easy है, तो आप लोग थोड़ा सा try कीजिए, and I'll show you also. I'll kind of help you out as well. Okay. Is anyone trying? I think Astik and all you guys are trying only. I think Sejal and Astik. I'll just wait for 1 minute and then a minute or so, or else then we'll start with the solutions. Okay. Yes, Astik. Okay. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, 22 से हम लोग 23 तक वेट कर लिए. अभी let's start. Okay, so first numerical is which factors are not included in a prime factorization of a composite number. So composite number हम लोगों को याद है like एक sequence of numbers में, ठीक है. Yes. Okay. Okay, okay. Astik, you're answering. Okay, great. So Astik is trying out sums, and whoever is trying it out, it's okay. And if you're not, then it's also okay. I'll help you out. So now, अभी क्या होता है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो कि एक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर, तो ये होगा आपका फर्स्ट इज a prime factorization of a number means a number which is expressed in the product of its prime numbers, ठीक है. तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स में आपका पहले ही जो प्राइम फैक्टराइजेशन का फंडामेंटल काइंड ऑफ लॉजिक है, उसमें ही आपका जीरो तो चला गया, जीरो तो नहीं होगा, 1 भी चला गया और 4 भी चला गया, काइंड ऑफ, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन का सेट होना चाहिए, ठीक है. जहां पे 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 और 2 होता है, तो 4 तो नहीं हो सकता है, और 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स में 1 इंक्लूडेड नहीं हो सकता. नीदर 1 इज एन कंपोजिट नंबर, तो किसी में भी नहीं होगा, ठीक है. तो अगर ये टर्म आपको कहीं पे भी देख रहे हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर, तो यहाँ पे किसी के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में उसका कॉम्पोजिट नंबर तो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है. composite number will not be included, 1 will also be not included, ठीक है, और 0 तो नहीं आएगा कोई भी फैक्टर्स के उसमें, ठीक है. तो यस, तो ये ऑल ही होगा, ठीक है. डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो अभी प्राइम फैक्टर्स में इसको एक्सप्रेस करना है ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर. तो ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर वी नो, ये है आपका ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर, ठीक है. इसका अगर हम लोग वो कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, सो दैट्स इट विल बी 9 बेसिकली, 9 into 11, और क्या होगा 9 into 11,
अभी ये होगा, अच्छा ओके, 9 into 11 into 101, ठीक है। अभी इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 into 3 into 11 into 101, ठीक है। ये हो गया आपका इसका प्राइम नंबर एंड ओके, तो इसका क्या आंसर आएगा अभी? 3 into 3, this will be the answer. 3 into 3 into 11 into 101, ठीक है। अभी स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर एंड एक्सप्रेस इट्स इन इट्स प्राइम फैक्टर्स। स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर तो अभी ग्रेटेस्ट 4 digit नंबर के बाद जो आता है वही स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर होता है, ठीक है। दिस इज द स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी ट्री करके देखते हैं, ठीक है। 2 into 5, 5 10, 3 0, ठीक है। अभी 2 को तो कुछ नहीं कर सकते, इसको करते हैं। 2 into 250, ठीक है। अभी इसको फिर अभी 2 होगा, ये होगा आपका, अच्छा 2 से अगर करेंगे तो ये 5 से भी कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं, 3 से अगर मतलब फैक्टर 3 के साथ हम लोग कर रहे हैं तो 25 कर देते हैं इसको और 100, सो दिस इज ऑल्सो 2500, राइट। तो अभी 25 को लिख सकते हैं 5 into 5, मतलब 5 और 5, और 10 को लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10, और यहाँ पे भी 10। अभी इसको 10 को लिख सकते हैं 2 और 5, इसको भी लिख सकते हैं 2 और 5, राइट। तो अभी ये एंटायर जो भी इसका जो भी प्राइम फैक्टर्स निकलेगा वो होगा आपका ये 2, फिर 2, फिर 5, दिस थिंग, दिस वन, ओके। तो कितने सारे 2 हो गए? 4 हो गया ना, हाँ 4 2, और कितने 5 हो गए? 1 2 3 4 5, 5 5 4 5, 4 5 हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, तो ये होगा आपका दिस थिंग। तो यहाँ पे होगा 4 लाइक 4 2s एंड 4 5s। तो अभी आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। 4 2s एंड 4 5s, इसमें तो नहीं होगा, ये हो गया रॉन्ग, ये हो गया रॉन्ग, इसमें एक 5 कम है, तो अभी ये 4 है ना, तो ये ए ही होगा आंसर। अभी फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 7 2 9, ओके, 1 7 2 9 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना होगा। एंड नाउ स्टेट द रिलेशन इफ देयर इज, इफ एनी, बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो अभी क्या पहले पहले का पहले करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा कि एक प्रॉब्लम को हम लोग सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, पर पहले का प्रॉब्लम हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। ये पहले का प्रॉब्लम है कि ऑल इसका सब प्राइम फैक्टर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखने के बाद उसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद प्रॉब्लम दिया गया है कि नाउ स्टेट द रिलेशन। अभी इसका रिलेशन निकालना पड़ेगा कि अगर ये दो है प्राइम फैक्टर तो इन दोनों के बीच अगर कोई रिलेशन है वो देखना पड़ेगा। अभी है इफ देयर, अगर कोई भी कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है वो भी, मतलब वी हैव टू सी इट, ओके। नाउ लेट्स टेक अस लाइक स्मॉल स्टेप्स। फर्स्ट है आपका सारे प्राइम नंबर्स लिखते हैं, 1 7 इसका, ठीक है। ये ऑमिट कर देती हूँ, ठीक है, हाँ, इट इज ओके। नाउ आई विल बिगिन द सम, ये हो गया, ठीक है। अभी फोर्थ वाला सम हम लोग कर रहे हैं, विच इज 1 7 2 9। इसको हम लोग देखेंगे। 1 7 2 9 का प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टर्स, अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी का जो भी रूल्स है वो आप लोगों को थोड़ा बहुत लाइक एक आइडिया रह जाता है, देन इट वुड बी वेरी इजी। तो दिस विल गो बाय 7, ओके।
दिस इज द प्राइम फैक्टर्स। अभी इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोगों को लाइक काइंड ऑफ अरेंज करना पड़ रहा है इसका प्राइम फैक्टर्स को, तो ये होगा 7, 13 एंड 19। अभी देखना पड़ेगा कि इन दोनों जो भी प्राइम फैक्टर्स निकले हैं असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर लिए, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा नाउ द रिलेशन। अभी रिलेशन देखना पड़ेगा दो कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीचों बीच, ठीक है। अभी यहाँ पे 7, अच्छा 13 और 9, दिस वन इज देयर। सो 9 माइनस 13 में अगर कोई रिलेशन है, इट इज आपका दिस इज 6, ओके। एंड देन दिस इज ऑल्सो वेरी मतलब एविडेंट। अभी 13 माइनस 7 भी अगर हम लोग करते हैं, दैट इज ऑल्सो 6। तो इनका रिलेशन क्या है? तो बेसिकली द डिफरेंस, सो द डिफरेंस between two consecutive prime factor is 6, ठीक है। ये हो गया। So this will be the answer. 7, 13 and 19, right? 7, 13 and 19. This will be the answer. Now, the product of three consecutive number is always divisible by 6. ये सच है कि गलत है कि आप नहीं जानते? कोई भी अगर आंसर आप like if anyone is doing it, you can answer it. अगर कोई भी लाइक द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमेशा 6 के साथ डिविजिबल होगा या नहीं होगा? Is anyone trying number 5? 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ठीक है मैं करती हूँ। 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर बेसिकली जैसे आप पकड़ लीजिए 11, 12, 13, ओके, 12, 14, A, ओके। सेजल इज सेइंग ये A। अभी हम लोग करके देखते हैं। तो ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, पहले का कॉन्सिक्यूटिव नंबर हम लोग देख लेते हैं। 11, आपका 12, 13, ये आ जाता है आपका 11, 1, 2, 1, 13, 1, 7, 1, 6। दिस इज इट, राइट। एंड ये अगर हम लोग डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं 6 के साथ, तो इट विल बी 6 2s are 12, then 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51, 8s are 48, 40, 49, 50, 51, 36, 6 are 36, ओके ठीक हो गया। अभी अगर हम लोग और एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर कंसिडर करते हैं, 19, 20, 21, ये भी हम लोगों को आएगा द आंसर, दिस विल बी दिस वन, ओके। अभी इफ यू डिवाइड इट विथ 6, इट विल बी अराउंड 1, 3, 3, 0। ऐसे ही आप लोग कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर पकड़ लीजिए, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, सो द प्रोडक्ट ऑफ इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, यस। Okay. Now we'll see what highest common factor is. Basically HCF, LCM जो हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोग पढ़ते थे बचपन में, what is it? We will see again. Like जो हम लोग करते हैं हमेशा कि हर एक टर्म के मतलब हम लोग समझते हैं, राइट? तो we will see this highest common factor. Common मतलब जो कि सब में सेम चीज है, ठीक है। और हाईएस्ट इज
ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, ठीक है, और फैक्टर वी नो व्हाट फैक्टर इज, ओके। सो अभी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो या मोर नंबर्स, लाइक टू गिवन नंबर्स या उससे ज्यादा भी अगर गिवन नंबर्स आपको दिया गया है और उसका HCF निकालने के लिए बोल रहे हैं, विच इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, फैक्टर्स को हम लोग जानते हैं कि फैक्टर्स आर आल्सो डिविजर्स, तो दिस इज आल्सो a terminology which HCF is known as, basically GCD, the greatest common divisor. This is also a term which is similar, like HCF और ये दोनों सेम ही है। अगर आपको बोला गया कि find the GCD, then the method will be same only, like चीज एक ही है, ठीक है। अभी ये तीन नंबर देखते हैं हम लोग, 20, 28 और 36। 20, 28 और 36 में हम लोग उसका फैक्टराइजेशन कर लिए, लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका फैक्टर्स निकाल लिया। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये तीनों नंबर में कौन से फैक्टर कॉमन है, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स, राइट, और ग्रेटेस्ट वे में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टू तीनों में कॉमन है, और टू का जो पावर है विच इज 2 to the power of 2, विच इज द ग्रेटेस्ट। अगर यहाँ पे कोई एक नंबर रहता जहां का जिसका 2 का पावर 1 रहता, ठीक है, लाइक 1 इज बेसिकली 2 to the power of 1 is 2 ओनली, ठीक है। अगर किसी में ऐसा होता कि 2 2 2 रहता बस, और यहाँ पे और एक काइंड ऑफ वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, उसका पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, तो हम लोग वही कंसिडर करते हैं। We will always consider the greatest common factor. So that's what I mean. तो यहाँ पे आपका you can see like 2 to the power of 2. So this is the greatest common factor of this three numbers. So because 2 is occurring twice, which is 2 to the power of 2. It is occurring twice, right? दो बार occur कर रहा है 2, और जो कि तीनों नंबर में कॉमन है, और जो कि तीनों नंबर का फैक्टर भी है। तो ये हो गया आपका 4 is the HCF of 20, 28 and 36. This is आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। अभी नाउ विल सी LCM क्या होता है। LCM इज बेसिकली लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल का डिफरेंस हम लोगों ने काफी लाइक 1-2 क्लास पहले ही हम लोगों ने देखा था। जो मल्टीपल्स आर, जैसे 12 के मल्टीपल्स अगर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, सो 12 into 1, then 12 into 2 multiples, okay, then 12 into 3 36, then 12 into 4 and so on and so forth, ठीक है। इसके आगे आगे जितना भी आप, ये मल्टीपल्स का कोई सीमा नहीं रहता है, मल्टीपल कैन गो टिल whatever you want to, but factors का एक सीमा रहता है। हम लोगों ने देखा था उसका डिफरेंस में कि फैक्टर्स का यही सीमा रहता है कि फैक्टर्स हमेशा वो नंबर पे ही एंड होता है। अगर 12 के फैक्टर हम लोग देखने की कोशिश करते तो वो अपने लाइक 1 होगा उसका फैक्टर्स, हाँ 12 का फैक्टर्स, नॉट प्राइम, ओके, नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट 12 का बस फैक्टर्स। तो इट विल बी 1 into 2 into 3 भी हो सकता है उसका फैक्टर, फिर मल्टीप्लाई नहीं यूज करते, ठीक है। 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 कैन ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ इट, 6 कैन ऑल्सो, ठीक है। ऐसे ऐसे चलते चलते फिर 6 7 8 9 नहीं होगा, 8 9 10 11 12 खुद का फैक्टर होगा। तो फैक्टर में हमेशा वो नंबर ही उसका खुद का सीमा है, ठीक है, इसके आगे नहीं होता है फैक्टर्स, मतलब नंबर तक ही जाता है फैक्टर्स। और मल्टीपल उसका ऑपोजिट होता है, नंबर से स्टार्ट होता है और आगे कितना तक भी आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होगा, 2 और मोर गिवन नंबर्स, ठीक है, 2 या उसके से ज्यादा जो भी गिवन नंबर्स है उसका लोएस्ट, सबसे कम छोटा कॉमन मल्टीपल जो भी है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल जो भी है। जैसे कि आप 12 और 18 में अगर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, और लोएस्ट एलसीएम का काफी सारे मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज आपका ये मल्टीपल वाले करके देख लिया हम लोगों ने, कॉमन मल्टीपल्स निकाल के देख लिया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, एम आई गोइंग फास्ट मैम? नंबर 1 देखना है क्या? 1 देखना है क्या बोल रहे हो आप? नहीं देखना है।
ओके अच्छा, एलसीएम के बारे में बता रहे हो, ठाकुर, दिग्गिराज ठाकुर आई गेस। प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं देखना है सर, और बाकी फैक्टर्स में तो वन इंक्लूड होता है, पर प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं होता है। एलसीएम में, अच्छा ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट एलसीएम। ओके, हाँ हाँ, एलसीएम में आप कंसिडर नहीं करते, ठीक है जी। ओके, लेट्स से नाउ वी वर हियर राइट। तो अभी इसका कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि आप कॉमन मल्टीपल्स निकाल के, लाइक 12 के और 18 के, अगर आपको मल्टीप्लिकेशंस याद है या फिर करके आप देख लीजिए, जितना तक मल्टीप्लिकेशन आपको लगता है कि सबसे लाइक छोटा जो भी कॉमन मल्टीपल आ जा रहा है, दैट यू कैन कंसिडर इट। या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके, लाइक कोई भी नंबर का आप पूरा वो करके, 12 जैसे हो गया 2 6 फिर 2 3, वैसे करके भी आप देख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन करके, या फिर डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये जो डिवीजन, उल्टा डिवीजन, तो ये ही आपका डिवीजन मेथड ही है, ठीक है। तो नाउ अभी आपको जो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है 12 एंड 18, सो 12 एंड 18 का कॉमन मल्टीपल अगर निकालेंगे तो 12 फिर 24 फिर 36 आ गया। 18 का भी आप अगर कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं 18, फिर 2 से क्या होता है, 2 3 6 16 1, हाँ 36, तो आ गया, हाँ 18 2 36 आ गया, और 12 3 36 आ गया। तो सबसे छोटा जो भी आपका मल्टीपल होगा वो होगा आपका 36। फिर उसके बाद 72 भी आता है, फिर 108 भी आता है, पर सबसे छोटा ही हम लोग कंसिडर करेंगे, सबसे जो लीस्ट है, जो लोएस्ट मल्टीपल है, ठीक है, विच इज 36। तो लोएस्ट इज 36, ओके मिल गया। अभी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी देख सकते हैं सिमिलर वे में, जैसे 12 का इधर कर लिया, फिर अभी 18 का करके देखते हैं, ठीक है। 2 9 3 3, now we can see it as 2933, so 12 का is this and this is 18। तो इसमें क्या होता है, we will consider जो हाईएस्ट पावर वैल्यू है उसको कंसिडर करते हैं दोनों नंबर में, ठीक है। 2 है कॉमन, पर 2 का जो भी हाईएस्ट लाइक पावर है वो कंसिडर करेंगे। जो 2 का हाईएस्ट पावर इज 2 हियर, एंड यहाँ पे एक ही 2 है, ठीक है, वो कंसिडर करते हैं। और 3 का भी हाईएस्ट फैक्टर हम लोग हाईएस्ट लाइक एन ऑफ पावर कंसिडर करते हैं। सो 3 का भी स्क्वायर ही हाईएस्ट है, और 2 का भी यहाँ पे स्क्वायर ही हाईएस्ट है, दोनों, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लोग देखने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे 3 का हाईएस्ट इज देयर, एंड 2 का भी स्क्वायर ही है हाईएस्ट, एंड 3 का भी दिस इज ओनली हाईएस्ट। तो अभी अभी इन दोनों नंबर का जो भी एलसीएम आएगा, कोई भी मेथड से करो, अगेन इट्स सिमिलर टू एचसीएफ, कोई भी मेथड से करो तो आंसर वुड बी सेम 36, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट। अभी और न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोगों को और अच्छे से इसको क्लियर होगा बेसिकली। I hope up until now it's clear. If you are getting confused with this second prime factorization वाला जो मतलब जो लॉजिक मैंने बताया है, उसमें क्या होता है, इट्स वेरी इजी। जो भी मैक्सिमम नंबर, लाइक जो भी मैक्सिमम पावर रहता है प्राइम फैक्टर्स के, इनके प्राइम फैक्टर्स ही आप कंसिडर करेंगे, पर जो भी मैक्सिमम पावर होगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे उसमें। जैसे 12 में आपका 2 2 बार ऑकर कर रहा है, और 18 में 3 2 बार ऑकर कर रहा है, तो हम लोग उसका जो मैक्सिमम पावर है वही कंसिडर करते हैं। मतलब प्राइम फैक्टर का जो मैक्सिमम टाइम जो ऑकर कर रहा है, या फिर जो पावर है, which is what we'll be considering। अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो we'll understand it better। अभी एलसीएम लाइक 20 25 और 30 का एलसीएम, और एचसीएफ 18 54 और 81 का एचसीएफ। लेट्स डू इट, एंड देन विल देन नेक्स्ट सम तो अभी बाद में आएगा। अभी guys start kind of doing it। we have 15 minutes more, so 4 सम तो हो ही जाएगा 15 minutes में।
Is anyone trying? बहुत easy है, I know. It's very basic. आपको लग रहा होगा कि बहुत basic है, but then which is the essence of this particular basic foundation classes. Yes, okay. Someone is trying. Thank God. 1 का 5. Okay. Okay, दिग्गिराज ठाकुर. Great. आप बोल रहे हो 1 का 5 होगा, मतलब LCM आप बोल रहे हो इसका 5 होगा. कैसे 5 होगा? दिग्गिराज आपका okay, someone else has answered. Lowest common multiple, हमेशा याद रखना कि मल्टीपल होगा. दिग्गे मिस्टर ठाकुर, मल्टीपल होगा, ठीक है. 5 कैसे होगा? 5 तो आपका वो हो गया. मल्टीपल्स पे देखिए 20 का, लाइक इन तीनों में सबसे कम कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है. वैसे भी आप कर सकते हो, इसका बहुत सारे मेथड्स है. आप कोई भी मेथड से कर सकते हो. चलिए, अब टाइम हो रहा है, हम लोग सोल्यूशन पे फोकस करते हैं. 10 you're saying, Diggiraj? Okay, I guess. Oh yeah. Yeah, Mayank, you're right. 150. Okay. Okay. ठीक है, मैं करती हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिए. देन ऑफ कोर्स दीज आर सम्स जो कि LCM HCF आपको डेफिनेशन से ज्यादा आपको एग्जाम्पल्स कर करके ही आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन या फिर सही आंसर मिलेगा. ओके, तो लेट्स सी. LCM मैंने जैसे बताया था, LCM बहुत सारे मेथड से आप कर सकते हो. फर्स्ट इज द कॉमन मल्टीपल्स निकाल के आप कर सकते हो, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन निकाल के कर सकते हो. जस्ट बिकॉज वी हैव लर्नड प्राइम फैक्टराइजेशन टुडे, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से ही ये करते हैं. ठीक है, तो अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर करते हैं 20 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 4. ठीक है, 4 into 5. अभी फिर 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 into 5. और क्या नंबर था? 30 था ना. 30 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3 6 into 5. ठीक है ना. अभी जो भी है LCM क्या होता है ना, इन सब का LCM इन सब का जो भी हाईएस्ट वो है, हाईएस्ट पावर है, बेसिकली यही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई, हमेशा ये याद रखना, मल्टीप्लाई द प्राइम फैक्टर्स, एक्सक्यूज माय हैंडराइटिंग, prime factors raised to their respective, ठीक है, highest power. POW भी लिख सकते हैं, पावर. ठीक है. अभी जो भी हाईएस्ट है रिस्पेक्टिव, मतलब प्राइम फैक्टर रेज टू देयर हाईएस्ट रिस्पेक्टिव पावर्स, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. 2 का हाईएस्ट यहाँ पे क्या है? 2 स्क्वायर 20 में. ठीक है. 5 का क्या है? 5 स्क्वायर. 3 का क्या है? 3 अकेले ही है. ठीक है, तो ये हो गया 300. So whoever's answer was 300, you are right. It's 300. Great. Okay. So इसका और एक मेथड होता है डिवीजन मेथड. ठीक है, डिवीजन मेथड तो मतलब जो भी हम लोग वो उस टाइम करने की कोशिश कर रहे थे, अभी
इतना तक आई गेस सबको समझ में आ गया. लाइक you can write it down, you can remember it as however you prefer. This is the main basic fundamental of LCM, which is multiply the prime factors raised to their respective highest power. ठीक है, अभी ये कर दिया ऑमिट. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ना इसको डिविजन मेथड में भी कर सकते हैं, जो डिविजन मेथड हम लोग देख रहे थे. आई एम नॉट डूइंग इट एंटायरली, आप थोड़ा सा करके देख लीजिए. ठीक है, 2 से अगर कर दे तो ये होगा आपका 10. अरे ठीक है, ये होगा आपका 10. 25 तो जाता नहीं है, फिर अभी 30 का हो सकता है 15. अभी फिर से 2 से ही करते हैं. 5 हो गया, 25 तो नहीं होगा, 15. जो भी नहीं होगा उसको लिखते जाएंगे नीचे. अभी 5 ही होगा इसका जो भी है. 5 1, 5 5, 5 3. तो ये 5 3. These are commas. तो यही हो गया आपका 2 का 2 बार, 2 का ट्वाइस पावर, 5 का भी दिस एंड दिस. यही आ गया आपका डिवीजन मेथड से. और अगर आप कॉमन मल्टीपल्स भी निकालेंगे आपको दिखेगा कि सबसे जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो आपका यही होगा, आपका 300 ही होगा. ठीक है, इसका भी वैल्यू आपका 300 ही आएगा, है ना, डिवीजन मेथड से अगर आप करेंगे. हो गया. अभी आपका हो गया ये वाला. अभी HCF करते हैं. HCF बहुत इजी होता है. ठीक है, HCF तो सबसे मजेदार है और इजी है. अभी 18 है, 54 एंड क्या था, 81 था ना, 81. तो 18 का क्या होता है, 2 और 9, तो 3 into 3. अभी 54 का देखते हैं क्या होता है. 2 9 इन 9 नहीं होता है. 2 18 से 54, 3 3 3. अभी 81 होता है 9 into 9, तो 4 बार 3 होगा. ठीक है, तो जो भी है अभी HCF जब निकालते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं. इनका जो भी फैक्टर है उनमें जो भी कॉमन है, तो 2 सब में कॉमन नहीं है, 3 सब में कॉमन है, पर कितने बार कॉमन है दैट विल सी. एक बार हो गया कॉमन और एक बार हो गया कॉमन. ठीक है, यस 9. राइट तीरथ, सॉरी, राइट तीरथ. 9. Sneha, you're also right. Mayank, you're also right. Great. Thank you, guys, for trying. Whoever is trying these very basic numericals, thank you for trying. Because पता है हम लोगों को थोड़ा लगता है कि अरे ये तो बहुत इजी है, ये कौन करेगा. तो अभी थर्ड वाला करते हैं. HCF of 2 consecutive numbers, even numbers and odd numbers. ठीक है, मतलब 2 consecutive numbers करेंगे पहले, फिर उसके बाद even number भी करेंगे और odd number भी करेंगे. अभी even number odd number सबको याद है, assuming कि सबको याद है, which is I think a great assume because बहुत क्लासेस हम लोगों ने लगाया बहुत बेसिक्स पे. तो अभी पहले एक नंबर, जो भी नंबर है आप जो भी नंबर बताइए, क्या नंबर ले पहले HCF के लिए. क्या है HCF, अच्छा 2 consecutive numbers. ठीक है, 4 और 5 लेते हैं. ठीक है, अभी 4 का क्या होता है, 4 is 1 2 factors. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल फैक्टर्स जो भी होता है. अभी फैक्टर 5 का क्या होता है,
1 और 5। तो इसका HCF क्या होगा? HCF of two consecutive numbers will be 1, मतलब ऐसे consecutive numbers, ठीक है। अभी B वाला हो गया आपका इवन नंबर। इवन नंबर क्या क्या था? इवन नंबर था आपका 2 और 4, ठीक है। पहले का ही दो इवन नंबर्स ले लेते हैं, 2 और 4। तो 2 आपका 2 का क्या होता है? 2 इंटू 1। 4 होता है आपका 2 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो इसका HCF क्या आएगा? 2। तो इवन कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, ये सब ना हम लोग कॉन्सिक्यूटिव मतलब पास पास का दो इसको कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव। अभी हो गया सी का ऑड। The first two odd number is 1 2 3, 3 और 5 को लेते हैं, ठीक है। अभी 3 और 5 का क्या होता है? 3 is 3 into 1 and 5 is again 5 into 1, मतलब 5 और 1 है ना, इसका फैक्टर्स जो भी होता है। तो इसका भी 1 will be HCF। जी जी, राइट, ओके। ऑड का होगा 1, नंबर्स का कोई भी नंबर्स का होगा 1 और HCF ऑफ इवन नंबर होगा 2। This one will be 1, this one answer will be 1, this one will be sorry 2। इवन नंबर्स का हमेशा HCF 2 ही होगा, दो consecutive, और अभी ऑड नंबर्स का 1, ठीक है। और अभी आपका देखते हैं कि अभी फोर्थ वाला न्यूमेरिकल इज एन ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव टू काइंड ऑफ डू, व्हिच इज ये दो आपका A9 and 4 is there, and then 12 and 5 is there. Observe a common property in LCMs. If the LCM is the LCM, the product of the number in each case, मतलब LCM जो आएगा ना ये नंबर्स के, ये क्या आपका प्रोडक्ट होगा वो नंबर्स के? मतलब समझ पा रहे हो? Am I clear? Like इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट इज 36, राइट, और इन दोनों का प्रोडक्ट इज 60। इनका जो भी एलसीएम आएगा वो क्या इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा? ये आपका ऑब्जर्वेशन है, यस और नो में, मतलब आप आंसर इक्विवेलेंट होगा क्या इन दोनों के साथ, यही आपका वो है, ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्व करना है। तीरथ इज राइटिंग यस, ओके ग्रेट तीरथ। ओके, नाउ लेट्स सी, ठीक है, करते हैं। अभी क्या 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 नंबर था वो? 4 एंड 9 था ना पहले वाला, फोर्थ सम वी आर डूइंग। पहले वाला था 9 एंड 4। अभी 9 और 4 में 9 क्या होता है? 3 इंटू 3। 4 क्या होता है? 2 इंटू 2। अभी एलसीएम क्या होगा इसका? 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ये हो गया आपका 36। और अभी 2 होगा, सेकेंड वाला क्या था? 5 और 12 ना, 5 एंड 12। 5 का क्या होता है? 5 एंड दिस वन। 1 तो है ही ओमनी, मतलब ऐसे ही है, ओमनी प्रेजेंट वी कैन कॉल इट एज, ओके। एंड 12 का क्या होता है? 5 इंटू 6 होता है ना, ना सॉरी 5 क्यों होगा, अरे क्या लिख रही हूँ। ट्वेल्व, टू 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 4 होना 3, ठीक है। अभी हाईएस्ट, इसका हाईएस्ट में क्या आएगा? 2 स्क्वायर
3 का तो हाईएस्ट पावर 1 ही है और 5 का भी 1 ही है और 1 तो है ही, ये होगा 60। तो यहां से हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे कि दिस इज बेसिकली यस। पहली बात तो जो भी क्वेश्चन था हमारा वो है यस आंसर। LCM is equal to the product of two numbers in each case. So we can also say that when two numbers are co-prime, then the LCM is the product of their numbers. So when ये यहां से और एक ऑब्जर्वेशन आता है, when two numbers are co-prime, co-prime सबको याद है ना क्या है? If yes then say it yes. मतलब अगर कोई किसी को मेंशन करना है को-प्राइम का जो भी मतलब जो भी फंडामेंटल्स थे, को-प्राइम क्या था, अगर किसी को याद है, इफ यू कैन मेंशन इट्स ग्रेट, और एल्स आई विल जस्ट राइट इट आल्सो। तो इसमें से क्या हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर कोई दो नंबर को-प्राइम है तो उसका एलसीएम इज आल्सो अ प्रोडक्ट, द एलसीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है। और को-प्राइम क्या था? को-प्राइम वाज बेसिकली दो नंबर को-प्राइम तभी होते हैं जब उनका जो कॉमन फैक्टर है वो बस 1 ही है ना, जो वो बस मतलब 1 है। जैसे कि 5 और 12, इन दोनों में जो को-प्राइम है, इन ये दोनों को-प्राइम है। क्यों को-प्राइम है? क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है विच इज ओनली 1। 9 और 4, दिस इज ऑल्सो को-प्राइम। ठीक है, 1 तो है ही ना इधर, तो इन दोनों के बीच जो भी है, यस, हैविंग नो कॉमन प्राइम फैक्टर। ओके, राइट निर्मल, या वी कैन, यस, सी अनदर टर्म लाइक इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि हैविंग नो कॉमन प्राइम फैक्टर। वेरी गुड। सो निर्मल हैज रिटन इट, यू कैन सी इट इन द चैट बॉक्स कि कोई भी प्राइम लाइक कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं होगा प्राइम। ओके, anyone else has anything else to mention? Having किसी को अभी तक का कोई क्वेश्चन है? लाइक आज जितना भी जो भी पढ़ाया गया, विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF, LCM, दैट्स अबाउट इट। और उनके जो भी न्यूमेरिकल्स जितना भी करवाया गया है। Okay, there is, I guess, no question. No one has any question. ठीक है। So, and do anyone wants to mention anything, like किसी के पास और कुछ extra कुछ जानकारी है? You can mention it also in the chat box, or if you want me to like kind of unmute you, I can do that as well. आप बता सकते हैं, no doubt, it's clear. Okay, Pooja, if you have, no, I'm saying if you have anything extra to say, to mention, um, if you have anything extra, like anything about HCF, LCM, about prime factorization, any point that I might have missed in this particular class, वो भी आप क्लास में हैंड रेस करके कोई भी क्लास में आप मेंशन कर सकते हो। We all as basic like we all like Yash, even Aryan, Aditi, we all try to cover an aspect comprehensively, but then अगर कोई भी छोटा मोटा चीज हम लोगों से मिस आउट हो जाता है, it you guys are more than like welcome to mention it in the class. अगर हम लोगों से कोई भी गलती हो जाता है, then also you can clear like मतलब आप लोग प्लीज हम लोगों को वो कर दीजिए।
कोई भी अगर फंडामेंटल्स हम लोगों को लाइक गलत हम लोगों को समझ में आया तो इन दैट केस वी विल आल्सो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट सेम थिंग जो भी हम लोगों को समझ आता है. Yes, right, Yash, we are all here to learn, right, right, absolutely right. Yeah. So basic foundation is basically a like सेल्फ लर्निंग क्लास जहाँ पे हम लोग खुद से पढ़ के फिर उसके बाद खुद से ही हम लोग समझा देते हैं एक दूसरे को. तो if anyone is, it would be great if the topic wise examples are also discussed. Okay, I guess Nirmal you're talking about कि यूपीएससी के टर्म्स में. तो यूपीएससी के टर्म्स में क्या होता है ना, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कंबाइन होते हैं. इट्स नॉट लाइक कि आपका यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज के जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इट वोंट बी लाइक कि एचसीएफ और एलसीएम आपको पूछा गया या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाने के लिए बोला गया. इट वुड बी कॉम्बाइन लाइक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो कि हम लोग लास्ट 2 क्लासेस में हम लोग ट्राई कर रहे थे. कुछ बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे. आई डेफिनेटली डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास इज वेल. तो वहां पे क्या होता है ना, काफी सारे अलग अलग टॉपिक जैसे एपीजीपी का आ जाता है, एक टॉपिक आ जाता है. तो वो सारे बेसिक अगर हम लोगों को काफी सबको शायद पता नहीं होगा क्योंकि हम लाइक बहुत लाइक सम ऑफ अस आर नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, देन इट वुड बी रियली डिफिकल्ट कि एक क्लास में एपी या जीपी पूरा समझ लेना या फिर बस फॉर्मूला जान के कर लेना न्यूमेरिकल. इट वुड बी रियली डिफिकल्ट. तो इसीलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करना अभी लाइक हर्डल हो रहा है वो वाला, विच विल क्रॉस डेफिनेटली. I'll just show whoever is equipped with this mathematical term. दो numerical है which we will solve in the next class, but I'll just show it to you today so that you can take a screenshot and you can try it as well. एक है आपका this one, 23 factorial, which is this, but उसका जो middle terms है, ठीक है, 23 factorial के ABC, ठीक है, these will be digits, like जो भी digit होगा ABC, वो digits हम लोगों को find करना है और उसका sum हम लोगों को निकालना है. ठीक है, उसके बाद ये वाला तो बहुत easy हो जाता है आपका. This one, what should be the value of A and B if this entire is divisible by 1 2 3 4 6 7 and 8. तो 2 3 4 6 7 एंड 8 के डिविजिबिलिटी रूल ये नंबर सेटिस्फाई करेगा. दिस इज अ हिंट. ओके, तो आपको ए और बी का वैल्यू आपको निकालना है और उसके बाद आपको ये 23 फैक्टोरियल वाला, फैक्टोरियल सबको पता है आई गेस क्या होता है. 23 फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5 so on and so forth into 22 into 23. So this is the factorial basically. So 23 factorial, this is a symbol of factorial. 23 factorial is basically 1 से लेके 23 तक सबका मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो हम लोग ये वाला टर्म हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, लाइक ये मल्टीप्लाई करके 23 तक जो भी नंबर होगा. आप समझ पा रहे हो कितना ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा ये करना, क्योंकि आपको 1 फिर 2 फिर 3 फिर 10 तक मल्टीप्लाई करो, फिर 10 से लेके 20 तक करो, फिर 20 से 23 तक सब नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फिर आपको ये पूरा एंटायर नंबर आपको मिलेगा और उसमें से आपको दिख जाएगा कि ए बी सी का वैल्यू और मतलब ए बी सी का जो भी डिजिट होगा वो वैल्यू फॉर्म में क्या आएगा. you'll understand that and accordingly you can ये सेपरेट डिजिट करके आप उसका सम भी निकाल पाओगे. आप ऐसे कर सकते हो और एक बहुत एक इजी मेथड भी है which we will discuss in the next class, but जिन लोगों को पता है you can do it. That's the reason I have shown it in today's class as well. ठीक है, so we can wrap up today's class. It's already 3:10. Okay, will not take much time because you can practice it at your home as well. Okay, guys, if no one has any other question, I guess no one. Okay, no doubt, it's clear. Okay, great. Okay. Thank you, Pooja. Thank you, everyone, for attending the class.
Thank you, those who have tried to solve the basic numericals as well. Okay. Yes, thank you, guys. Okay, great.